अतिक्रमण के खिलाफ सीएम धामी का एक्शन, अधिकारियों को दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। सड़कों के किनारे अतिक्रमण कर करें सख्त कार्रवाई। उत्तराखंड से अब दूर नहीं अयोध्या धाम, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुरू कराई स्पेशल बस। ये है रूट, टाइम टेबल और किराया। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए होगा संकल्प। हर की पौड़ी पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर जुटेंगे विदेशों से आए कई हिंदी साहित्यकार। आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विकासकों को प्रशासनिक शुल्क के 4,000 रुपए की दी गई छूट। वेडिंग डेस्टिनेशन की थीम पर काम शुरू, वीकेटीसी की बैठक में कई प्रस्ताव पास। मंदिरों में भी वेडिंग डेस्टिनेशन की तैयारी। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश के जताए आसार। 3500 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों के किनारे हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सचिवालय में भी सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सीएम ने पुलिस, नगर निगम और जिला प्रशासन को संयुक्त रूप से ऐसे अतिक्रमण को कार्रवाई किया। और इससे पहले खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन गुजरात चलते हैं और पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और मुकेश अंबानी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। Each of Reliance's business is striving to fulfill the dreams of my 7 crore fellow Gujaratis. Reliance has invested over $150 billion, that is 12 lakh crores, in creating world-class assets and capacities across India in the last 10 years. Of this, more than 1/3 has been invested in Gujarat alone. Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel ji, today I would like to make 5 commitments to the people of Gujarat. First, Reliance will continue to play a leading role in Gujarat's growth story with significant investments in the next 10 years. Specifically, Reliance will contribute to making Gujarat a global leader in green growth. We will help Gujarat target to meet half of its energy need through renewable energy by the year 2030. For this, we have started building the Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex over 5,000 acres in Jamnagar. This will generate a large number of green jobs and enable production of green products and materials, and will make Gujarat a leading exporter of green products. And we are ready to commission this in the second half of 2024 itself. Second, Reliance Jio completed the fastest rollout of 5G infrastructure anywhere in the world. Today, Gujarat is fully 5G enabled, something that most of the world does not yet have. This will make Gujarat a global leader in digital data platforms and AI adoption. 5G enabled AI revolution will make Gujarat's economy more productive, more efficient, and more globally competitive. Besides generating millions of new employment opportunities, it will produce AI-enabled doctors, AI-enabled teachers, and AI-enabled farming, which will revolutionize healthcare, education, and agricultural productivity in the state of Gujarat. This will benefit every Gujarati in urban as well as rural areas, since to my mind, AI also means an all-inclusive growth. Third, Reliance Retail will further accelerate its mission to bring quality products to consumers and simultaneously empower lakhs of kisans and small merchants.
Our retail business improves the quality of life of all households of Gujarat with better products and services. Fourth, Reliance will make Gujarat a pioneer in new materials and the circular economy. As a first step, Reliance is setting up India's first and world-class carbon fiber facility at Hazira. And finally, fifth, Prime Minister Modi ji has announced that India will bid for 2036 Olympics. In preparation for that, Reliance and Reliance Foundation will join forces with several other partners in Gujarat to improve education, sports, and skills infrastructure that will nurture the champions of tomorrow in various Olympic sports. Most respected Prime Minister Narendra Bhai Modi ji, before I conclude, permit me to articulate a conviction that resides in the heart of everyone in this hall and most Indians. As Chief Minister of Gujarat, you used to say, Bharat ke vikas ke liye Gujarat ka vikas. And that is how you made Gujarat India's growth engine. Now, as Prime Minister of India, your mission is Dunya ke vikas ke liye Bharat ka vikas. You are working on the mantra of global good and make India the world's growth engine. The story of your journey from Gujarat to the global stage in just 2 decades is nothing short of a modern epic. Today, and in today's India, is the best time for young people to enter the economy, to innovate, and to provide ease of living and ease of earning to hundreds of millions of people. The coming generations will indeed be thankful to Prime Minister Modi for being both a nationalist and an internationalist. You have laid a solid foundation for Viksit Bharat, India as a fully developed nation in Amrit Kal. No power on earth can stop India from becoming a $35 trillion economy by 2047. And as I see, Gujarat alone will become a $3 trillion economy. Therefore, I am confident, every Gujarati is confident, and every Indian is confident that the Modi era will take India to new summits of prosperity, progress, and glory. Thank you very much, sir. Jai Gujarat, Jai Jai Garvi Gujarat, Jai Hind. Thank you very much, sir. We would now like to invite Mr. Sanjay Mehrotra, CEO, Micron Technologies USA, to deliver his address. और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां पर बात कर रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों के किनारे हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर के देखा जा रहा है कार्रवाई की है और सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। सचिवालय में हुई सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सीएम ने पुलिस, नगर निगम और जिला प्रशासन को संयुक्त रूप से ऐसे अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। वहीं चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सभी चिन्हित मार्गों पर क्रैश बैरियर का काम पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले और नशे के हालत में वाहन चलाने वालों से सख्त निपटने की भी कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें कि राज्य में सड़क सुरक्षा के इंतजाम, सड़क हादसों की स्थिति की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को सड़कों के किनारे होने वाले अतिक्रमण रोकने के लिए जिला स्तर पर जिला प्रशासन और पुलिस को सघन अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड
उत्तराखंड राज्य के किसानों और फूड प्रोसेसिंग कारोबार से जुड़े उद्यमियों को देश दुनिया के साथ जुड़ने का मौका मिलने जा रहा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण एपीडा 12 जनवरी को देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव व बायर सेलर मीट आयोजित करने जा रहा है। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में अपने कैंप कार्यालय में आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने को कहा है। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने बताया है कि राज्य के विभिन्न उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संपर्क बढ़ाने को यह आयोजन किया जा रहा है। इसमें कई देशों की कंपनियां व समूह भाग लेंगे। बायर सेलर मीट के साथ साथ कॉन्क्लेव में किसानों के तकनीकी सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। कृषि उत्पाद उनकी प्रोसेसिंग पर विस्तार से मंथन भी होगा। किसानों व खाद्य प्रसंस्करण कारोबारियों के लिए ये एक अच्छा अवसर माना जा रहा है। सड़क सुरक्षा संगठन यानी कि बीआरओ उत्तराखंड में सामरिक महत्व के 5 हेलीपैड बनाएगा और ये हेलीपैड गुंजी, कालसी, टनकपुर, घनसाली और नाभिढांग में बनाने की योजना बनाई गई है। बीआरओ महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की है और इस दौरान श्रीनिवासन ने सीएम को बताया है कि बीआरओ गुंजी, टनकपुर, घनसाली, नाभिढांग व कालसी में हेलीपैड बनाने की योजना पर काम कर रहा है। उन्होंने सीएम से जोशीमठ से औली तक सड़क के रखरखाव का काम बीआरओ को देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा है कि ये सामरिक महत्व की सड़क है और इसके चौड़ीकरण का काम बीआरओ को दिया जाना चाहिए। जोशीमठ में हनुमान शिला से औली के लिए 15 किलोमीटर मार्ग निर्माण का काम भी उन्होंने बीआरओ को देने का अनुरोध किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के राम स्वप्न पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि सनातन विरोधियों के मन में चुनाव के डर से प्रभु राम का खौफ बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता चुनाव के डर से सुविधावादी हिंदू बन रहे हैं, क्योंकि सनातन विरोध की नीति पर चलने वालों के मन में चुनाव के डर से राम का खौफ होना लाजमी है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम को तो अयोध्या की यात्रा पर निकलना चाहिए, क्योंकि हरिद्वार की जनता ने उन्हें संन्यास पर भेजने का निर्णय लिया हुआ है। रावत को सबको सपने में दिखाई देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान राम उनके सपनों में जा रहे हैं, तो उनको भी राममय होते हुए यहाँ से लेकर अयोध्या तक की यात्रा निकालनी चाहिए। हरिद्वार होकर जरूर जाए अयोध्या। उत्तराखंड रोडवेज ने देहरादून से अयोध्या के लिए सीधी बस सेवा शुरू कर दी है। पहले दिन दून से मुरादाबाद तक की 2 सवारियों ने यात्रा की। दून से अयोध्या का किराया 1054 रुपए रखा गया है और अभी बस की मैनुअली बुकिंग हो रही है। जल्द ही इस बस को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। यात्री घर बैठे फिर बस का टिकट बुक करा सकेंगे। और आपको बता दें कि आईएसबीटी में विधिवत पूजा अर्चना के बाद इस बस को रवाना किया गया है। वहीं दून से अयोध्या के लिए ये पहली सीधी बस सेवा है और ये सुबह 11:30 बजे दून से चलेगी और अगले दिन सुबह 5:30 पर अयोध्या पहुंचेगी, जबकि अयोध्या से ये 3 बजे दून के लिए चलेगी और अगले दिन सुबह 9 बजे यहां पहुंचेगी। दून से अयोध्या का सफर कुल 1504 किलोमीटर का है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय देहरादून में उत्तराखंड निवेश और आर्थिक संरचना विकास बोर्ड की पहली बोर्ड बैठक आयोजित हुई। बैठक में बोर्ड एवं कार्य समिति की संरचना के साथ ही 10 करोड़ के प्रारंभिक कॉर्पस कोष के गठन को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी परियोजनाओं की पहचान कर उनका प्राथमिकता के साथ उनका सफल क्रियान्वयन हो, इस पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। राज्य में हवाई अड्डों के विकास एवं विस्तार, दूरसंचार अवसंरचना, मेडिकल कॉलेजों के विकास, नई टाउनशिप, आवास, औद्योगिक, लॉजिस्टिक और गलियारे, पर्यटन संबंधी निर्माण विकास जैसी बुनियादी ढांचे के क्षेत्र की परियोजनाओं के विकास के लिए अत्यधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। विधानसभा देहरादून में आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में उत्तराखंड आवास और नगर विकास प्राधिकरण यानी कि उडा और उत्तराखंड आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक हुई। बैठक में मंत्री ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को प्राथमिकता पर घर आवंटित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया को भी आसान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि यह योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है और बैठक में सामने आया है कि सत्यापन प्रक्रिया की जटिलता से आवंटन के बावजूद लाभार्थियों को आवास नहीं मिल पा रहे हैं। इसके लिए सत्यापन प्रक्रिया में अधिकतम 2 अफसर शामिल करने का निर्णय लिया गया है। योजना में काम करने वाले निजी निवेशकों को प्रशासनिक शुल्क में करीब 4,000 रुपए की छूट देने का निर्णय लिया गया है। देखिए, हमारा जो आवास विकास की जो बैठक थी उसमें हमने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना की जो विकासक बहुत पहले से, जो मैंने पिछली बार ही बताया था, उन्होंने अपना काम शुरू किया था, लेकिन उनके सामने कठिनाई आ रही थी कि रेट बढ़े हैं और हम उनसे प्रति यूनिट 2% आवास विकास विभाग उनसे लेता था, ताकि हम अपने प्रशासनिक कार्य के लिए उनसे जो हमारा पहले से तय था वो ले रहे थे। हमने उनको 4,000 रुपए की छूट दी, यानी 6 लाख पे हम पहले 12,000 लेते थे, अब हम उनसे 8,000 रुपये लेंगे, ताकि उनको एक छोटी सी राहत हमारी तरफ से मिले और लोगों को जो विकासक है। लक्सर में साइबर ठग पुलिस के चुनौती बनते जा रहे हैं। साइबर ठगों द्वारा आमजन ही नहीं बल्कि पुलिस और मीडिया से जुड़े लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है। साइबर क्राइम का ताजा मामला लक्सर का सामने आया है, जहां शातिर साइबर ठग द्वारा लक्सर के पत्रकार जसवीर सिंह की मेल आईडी हैक कर ली गई। साइबर ठग ने पत्रकार जसवीर की फेसबुक और व्हाट्सएप को पूरी तरह से हैक कर उनकी तमाम कॉन्टेक्ट लिस्ट उठाकर अपने व्हाट्सएप पर पत्रकार की डीपी लगाकर उनके अनेक लोगों को मैसेज सेंड कर पैसे की डिमांड की। इतना ही नहीं, शातिर साइबर ठग ने पत्रकार के दोनों फोन का डाटा डिलीट कर फोन भी जाम कर दिया। इसका पता लगने पर पत्रकारों ने लक्सर पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मामले को साइबर सेल को सौंप दिया है। मेरे दोनों फोन उनकी मतलब मेरी मेल आईडी हैकर ने दोनों फोनों को एक तरह से सीज कर दिया और जितना मेरा डाटा था टोटल डिलीट कर दिया। वहाँ उन्हें दिखाओ, आप उनसे मिले, उन्होंने मेरे फ़ोन चेक करे। फ़ोन चेक करने के बाद जैसे ही उन्होंने उसमें उसे कंगालना शुरू किया, तो जैसे ही फ़ोन को ठीक करते थे, यानी थोड़ा सा उसे वो करते थे, तभी तुरंत वो जो हैकर था फ़ोन को फिर सीज कर देता। यानी पूरी तरह से फ़ोन को उसने एक तरह से हैंग भी कर दिया और मेरा टोटल डाटा जो था वो डिलीट, यानी कि हाँ रीस्टोर भी नहीं हो पा रहा था। तो फिर तकरीबन 1-1.5 बजे के बाद मेरे दोनों फोन जो है किस तरह चल पाए। मैंने उत्तराखंड का निकाय चुनाव इन दिनों काफी चर्चा में है। गली मोहल्ला हो या फिर हाई कोर्ट, सभी से निकाय चुनाव की चर्चाएं देखी जा रही हैं। इन्हीं चर्चाओं के बीच जसपुर नगर पालिका क्षेत्र भी खूब सुर्खियों में है। दावेदारों की लंबी कतार को लेकर हो या फिर कांग्रेस की बार बार हार का इतिहास खूब सुर्खियां बटोर रहा है। ये है कि जसपुर निकाय चुनाव में कांग्रेस कभी भी अपने कैंडिडेट सही करके नहीं उतारा है और इसीलिए हार का सामना देखना पड़ा है। और अभी भी कांग्रेस जसपुर में निकाय चुनाव की तैयारी अच्छी चल रही है
और जैसे हम पिछली बार जीत करके आए थे, इंशाल्लाह इस बार भी जसपुर में अच्छे वोटों से जीत के आएंगे, क्योंकि हम जनता के बीच में हर समय रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छे वोटों से हम फिर जीत के आएंगे। ऐसा कांग्रेस का अस्तित्व जसपुर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी, क्योंकि ये हर बार कांग्रेस जसपुर निकाय चुनाव हारती है। कारण तो जग जाहिर है। सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रत्याशी का चयन अभी तक सही नहीं हुआ है, इसलिए हमारी पार्टी जो है कांग्रेस का चेयरमैन नहीं बना पा रही है। और सही तरीके से अगर प्रत्याशी का चयन होता है और पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है इस बार। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां पर पुष्कर सिंह धामी का अहम कार्यक्रम है। इस बीच आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी का एक अहम कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसको लेकर के शिरकत करेंगे और तमाम तरह की जो बड़ी बातें हैं वो भी देखी जाएंगी सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दौरा है। इसके साथ ही सीएम आवास पर शासकीय कार्य देखेंगे सीएम धामी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त देहरादून से, सीएम आवास पर शासकीय कार्य देखेंगे पुष्कर सिंह धामी। और इसके साथ ही आज ऊधम सिंह नगर जाएंगे सीएम धामी। तो बड़ा कार्यक्रम है, तमाम दौरे हैं। गांधी पार्क से रुद्रपुर मैदान तक रोड शो भी करने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। तो रुद्रपुर से गांधी पार्क रुद्रपुर मैदान तक रोड शो होगा और अहम कार्यक्रम है। नारी शक्ति वंदन महोत्सव में शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ बैठक करेंगे, शासकीय कार्यों का जायजा लेंगे। रुद्रपुर स्थित गांधी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन होना है। तो देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसको लेकर के शासकीय कार्य को भी देखेंगे सीएम धामी और नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। शासकीय कार्यों को देखने के साथ ही साथ कई अहम कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल होंगे और ऊधम सिंह नगर भी जाएंगे। इसके बाद रुद्रपुर का दौरा करेंगे। गांधी पार्क से रुद्रपुर मैदान तक रोड शो भी करेंगे। और इसके साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि रुद्रपुर से गांधी पार्क रुद्रपुर में रोड शो होगा। इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। नारी शक्ति वंदन महोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी। तो ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त देहरादून से। और लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए उत्तराखंड में चुनावी बिसात बिछने लगी है। भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम दल इस दंगल को जीतने का दावा कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने अभी से अपने चुनावी अभियान को तेज कर दिया है। भाजपा की चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसी के तहत धामी सरकार ने अयोध्या में श्री राम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर उत्तराखंड में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक राज्य में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाने का फैसला लिया है। सचिव एचसी सेमवाल ने आदेश जारी करते हुए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाएगा। आम जनमानस की सहभागिता से कलश यात्रा और झांकियों का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड भाजपा ने इन्हीं तैयारियों के बीच अपने बड़े नेताओं की रैलियों के कार्यक्रम भी तय करने शुरू कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां होंगी और साथ ही 1 दर्जन अन्य नेताओं के कार्यक्रम भी तय किए जा रहे हैं। और माना जा रहा है कि जनवरी अंत से उत्तराखंड में पार्टी के शीर्ष नेताओं की जनसभाएं शुरू कर दी जाएंगी। फिलहाल करीब 16 रैलियां करने का निर्णय लिया गया है। इसमें 3 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होंगी, जबकि 13 अन्य रैलियों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित अन्य बड़े नेता जनता को संबोधित करते नजर आएंगे। पार्टी नेताओं का कहना है कि इन रैलियों के जरिए भाजपा आचार संहिता लगने से पहले पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएगी। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि जनता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों में नहीं आने वाली है। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार की घेराबंदी की तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी के तहत कांग्रेस जहां अंकिता मामले में न्याय यात्रा निकालेगी, तो वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी, महंगाई, गन्ना किसान और कर्मचारियों समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार की घेराबंदी की तैयारी कर रहा है।
उत्तराखंड में शीतलहर के बावजूद राज्य की राजनीति का सियासी पारा हाई है। एक तरफ जहां उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में हैट्रिक लगाने की भाजपा की तैयारी है, तो दूसरी ओर विपक्षी दल भी एकजुटता और जनहित के मुद्दों के सहारे बीजेपी के रथ को रोकने की तैयारी कर रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस ने जहां पार्टी नेता राहुल गांधी की मणिपुर इंफाल से शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समक्ष उत्तराखंड में भी 14 से 16 जनवरी तक अंकिता भंडारी न्याय यात्रा निकालने का फैसला लिया है। इसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई समेत तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी दल सरकार की घेराबंदी करेंगे। वहीं उत्तराखंड में भाजपा ने राज्य की हर लोकसभा सीट को 5 लाख मतों के अंतर से जीतने का लक्ष्य रखा है और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पार्टी ने आचार संहिता लागू होने से पहले उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां कराने के साथ ही 1 दर्जन अन्य नेताओं के कार्यक्रम भी तय किए जा रहे हैं। देखिए, अभी हमने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि हमारी 5 लोग 1 लोकसभा की रैली तो हमारी हो चुकी है। हमने कहा कि 5 लोकसभा में प्रधानमंत्री की सभाएं हों। प्रधानमंत्री हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से अनेकों सभाएं मांगी है और लोकसभा चुनाव से पूर्व एक भगवामय वातावरण बन जाए, भाजपा कमल हर घर में खिल जाए, हर परिवार से मतदाता निकलकर मोदी जी को प्रचंड मतदान देने में अपनी सहभागिता है, उसके सारे कार्यक्रम हम आगामी दिनों में करने वाले हैं। हम तो केवल कांग्रेस में केवल जांच की मांग की है, आप क्यों बौखला गए? हमने तो ये कहा है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देख रेख में जांच हो जाए, जांच से कहाँ दिक्कत है। हमने यही तो कहा कि जो आरोपी हैं उनके फोनों की ट्रेसिंग तो हो जाएगी, किन किन से उन्होंने उस बीच में बात की, वो अभी तक नहीं हुआ। हमने यही तो कहा, चाहे वो रेणु बिजी हो, चाहे दूसरे हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था, उनसे भी तो पूछताछ होनी चाहिए कि सबूत क्यों मिटाए गए। कोई कांग्रेस लीगल बात ही तो कह रही है, हम कौन सी इलीगल बात करें। हम तो यही कह रहे हैं कि कानून में ये प्रावधान है कि कोई अपराध होता है और अपराध के सबूतों को मिटाना भी बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। तो इस केस में तो स्पष्ट है, आपने खुद कहा हमने डोजर चला दिया। देखिए, जनता, उत्तराखंड की जो जनता है, जनता को उनसे ये सवाल जरूर पूछने चाहिए कि जो उन्होंने इससे पहले वादे किए हैं उन वादों का क्या हुआ। उन्होंने कहा था कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी अब बर्बाद नहीं जाएगा। आज भी पलायन लगातार जारी है। पूरे हिमालयी जितने भी राज्य हैं उसमें से उत्तराखंड जो है 5वें नंबर पे है बेरोजगारी के मामले में अभी भी, और पूरे देश में जो है 14.2% जो है बेरोजगारी की दर अभी भी है। जितने घोटाले, केदारनाथ आपदा के बारे में उन्होंने कहा था कि यहाँ पर स्कूटर भी जो है तेल पीता है, वो आज भी जो लोग केदारनाथ आपदा घोटाले के दोषी थे वो आज भाजपा में हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। हमारी परिसंपत्तियों के जो बंटवारे का मामला है, ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी आज भी लंबित है। उत्तराखंड में भाजपा की तैयारियों के बीच प्रदेश के माहौल राममय करने के लिए संगठन के साथ ही सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत धामी सरकार ने अयोध्या में श्री राम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर उत्तराखंड में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक राज्य में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाने का फैसला लिया। सचिव एससी सेमवाल ने आदेश जारी करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाएगा। आम जनमानस की सहभागिता से कलश यात्रा और झांकियों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के सभी मठ, मंदिर, देवालय और नदी किनारे स्थित स्नान घाटों पर विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार राम के नाम पर राजनीति कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का माहौल बना रही है वो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, सबकी आस्था के प्रतीक हैं। हमारी भी आस्था उन पर है। हमने हर हमेशा देखे मंदिर का ताला खुलवाने का काम ही कांग्रेस की सरकार में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 22 जनवरी को जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश भर में 14 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक पूरे प्रदेश भर में प्रत्येक गांव में, क्योंकि प्रत्येक गांव में मंदिर है या कोई न कोई धार्मिक स्थल है, उन धार्मिक स्थलों के सफाई और जो उसकी पुताई करने का वगैरह का पूरा पार्टी ने कार्यक्रम तय किया है। और इसके तहत पूरे प्रदेश भर के मंदिरों में, सभी धार्मिक स्थलों में, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सभी स्थानों पर सफाई अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जाएगा। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के लिए अब समय बेहद कम है। यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दलों की तैयारी तेज हो गई है। हालांकि इन तैयारियों में भाजपा सभी विपक्षी दलों को पीछे छोड़ चुकी है, साथ ही जीत के लक्ष्य को भी बढ़ा दिया है।
वहीं भाजपा ने विपक्ष के मजबूत बूथों पर भी सेंधमारी की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री समेत तमाम दिग्गज नेताओं की चुनावी रैलियां भी कराने की तैयारी की जा रही है। सवाल यह है कि क्या भाजपा की ये तैयारी एक बार फिर विपक्षी दलों पर भारी पड़ेगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।